Assalamualaikum students. Today our object is the determination of chloride ion concentration in given sample using argentometric titration method. Argentometric titration falls under the precipitation titration. In precipitation titration there is a formation of precipitate during performing the titrometric analysis. When the titrant reacts with the analyte, it forms an insoluble substance. The titration is continued till the last drop of the analyte is consumed. When the titrant is aqueous, it reacts with the indicator resulting in color change and signals to terminate the titration process. ये भी सिंपल उसी टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस की तरह होता है. इसके अंदर जस्ट डिफरेंस ये होता है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बनते हैं, यानी प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है. जैसे ही टाइट्रेंट ऐड करते जाते हैं तो एनालाइट कंज्यूम होता जाता है, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन बढ़ती जाती है. ठीक है, हमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा. जैसे ही सारा एनालाइट कंज्यूम हो जाएगा और टाइट्रेंट एक्सेस जो है, जो एक ड्रॉप फ्लास्क में जाएगा, तो वो रिएक्ट करेगा विद एन इंडिकेटर, जिसकी वजह से क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा. दिस कलर चेंज इंडिकेट्स द टाइट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड. तो वो पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेते हैं, वो एंड पॉइंट होता है हमारा. ठीक है. मेथड्स बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर कंपाउंड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड argentometric method. They are most often used for determination of chloride ions, but they can be used also for other halides, bromide, iodide and some pseudo halides. राइट. अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है बेसिकली सिर्फ डिटर्मिनेशन करती है ऑफ क्लोराइड आयन. ठीक है. और इसके अलावा अदर हेलाइड्स को भी डिटरमाइन करती है, जिसके अंदर ब्रोमाइड और आयोडाइड और अदर सीडो हेलाइड्स भी हैं. तो हम जो अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे. टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की. वोल्हार्ड मेथड है, फेजेंस मेथड है और मोहर्स मेथड है. इन मेथड्स को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग थ्योरी में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर चुके हैं. वोल्हार्ड मेथड में हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो KSCN यूज़ कर रहे हैं. फेजेंस में डाइक्लोरो फ्लोरेसेंट यूज़ कर रहे हैं और मोहर्स मेथड में पोटेशियम क्रोमेट कर रहे हैं. इस टाइट्रेशन की लिमिटेशंस क्या हैं? फ्यू नंबर ऑफ आइंस, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है कि जो हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कर रहे होते हैं उसके अंदर सिर्फ हम हलाइड आयन और सीडो हलाइड आयन को डिटरमाइन कर सकते हैं. इसके अदर आइंस को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है ग्रुप प्रेसिपिटेशन में बी अकर्ड. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कंपेयर टू एसिड बेस और रिडक्शन ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन, द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हैज़ नो मच मोर methods. Difficult to select suitable indicator, difficult to obtain an accurate precipitation composition, the slow rate of formation of most precipitates involving period of digestion, cooling and filtration. Right, these are the limitation of precipitation titration. Now we will see that how we will perform this experiment. Requirements are beaded flask, indicator, iron stands, and the chemicals which we will use will be 0.01 normal solution of sodium chloride, 0.01 normal solution of silver nitrate and 2% potassium chromate. Now we will see how we will calculate 0.01 normal solution of normal sodium chloride. As we know the formula of normality, that is number of gram equivalent weight of solute over volumes in liter. Right, simply we will put the molecular weight of sodium chloride and it will divide it by its acidity or basicity, and that is 1. So the gram equivalent weight we will get will be 58.5 gram. Now we know that 58.5 gram of sodium chloride in 1000 ml is equals to 1 normal. For 0.1 normal we will require 5.85 gram of sodium chloride, and for 0.01 normal we will need 0.585 gram of sodium chloride. For 0.01 normal solution, now we will weigh 0.585 gram of sodium chloride, and after weighing we will take 1000 ml volumetric flask. In this volumetric flask, first we will add a small quantity of distilled water
and after adding this distilled water we will pour this sodium chloride, which is 0.585 gram. Then we will dissolve the solute. After dissolving we will add this distilled water up to this mark. We have prepared 0.01 normal solution of sodium chloride. From this volumetric flask which we have prepared of about 0.01 normal sodium chloride solution, we will take 10 ml from this volumetric flask and will pour it into a conical flask. ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर से हम 10 ml तक लेंगे एंड देन इसको फिर हम कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देंगे. यहाँ पे बीकर शो कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें टाइट्रेशन करना है तो बीकर में डाल देंगे हम 10 ml तक सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को, और उसके अंदर हम इंडिकेटर ऐड करेंगे 3 to 5 ड्रॉप्स. अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमें जो है ब्यूरेट में डालने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है ऑफ 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन. ठीक है, अब हम 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रिपेयर करेंगे. सेम वही प्रोसीजर है, नॉर्मलिटी के फार्मूले में पुट किया. सिल्वर नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 169.86 से डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया 169.86 ग्राम. 169.86 gram of silver nitrate in 1000 ml is equivalent to 1 normal. For 0.1 normal we will need 16.98 gram, and for 0.01 normal 1.698 gram of silver nitrate in 1000 ml. 1.698 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को वे करेंगे एंड देन जैसे हमने अभी सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन प्रिपेयर किया करते हुए देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से हम सिल्वर नाइट्रेट का प्रिपेयर करेंगे. 1.698 को वे करेंगे एंड देन 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में स्मॉल क्वांटिटी में डिस्टिल वाटर लेंगे. उसके अंदर फिर हम सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करके डिज़ोल्व करेंगे और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली जो मार्क है उधर तक मेकअप कर देंगे, और हमारे पास 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ये सोल्यूशन जो है हम फिर ब्यूरेट में ऐड कर देंगे. ब्यूरेट में 0.01 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमने फिल कर दिया 0 मार्क तक, और जो है हमारे पास बीकर में इसके अंदर वैसे तो हम कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं, लेकिन ठीक है इसके अंदर हमने 0.01 नॉर्मल बीकर में हमारे पास 0.01 नॉर्मल सोडियम क्लोराइड है. अब ड्रॉप वाइज देखें हम ऐड करते जाएंगे सिल्वर नाइट्रेट, तो हमारे पास एक टर्बिड सा सोल्यूशन बनता जा रहा है. इसके अंदर जो ये इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है. ये जो लेस सॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो किसका है? सिल्वर क्लोराइड का है. जब तक इंटायर क्लोराइड कंज्यूम नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती जाएगी. ठीक है, अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको हम ऐड कर रहे हैं. अब जब नियरेस्ट पॉइंट पे आ रहा है तो देखें जो हमारे पास एंड पॉइंट है वो रेड कलर का अपेयर होना शुरू हो रहा है. जब तक परसिस्टेंट एक रेड कलर अपेयर नहीं होगा तब तक हम सोल्यूशन को ऐड करते हैं. जो लास्ट ड्रॉप होगा उसमें हमारे पास क्या बनेगा? सिल्वर क्रोमेट्स बनेगा. जैसे ही क्लोराइड ख़त्म हो जाएगा तो जैसे ही सिंगल ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट का ऐड होगा बीकर के अंदर, तो जो हमने इंडिकेटर ऐड किया है पोटेशियम क्रोमेट, तो ये जो है सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा क्रोमेट के साथ और क्या बनाएगा? सिल्वर क्रोमेट, और हमारे पास रेड कलर अपेयर हो जाएगा. देखिए
पहले किस तरीके का सोल्यूशन आ रहा था, देखें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते जा रहे थे। जब तक कम्प्लीटली क्लोराइड आयन कंज्यूम नहीं हुआ तब तक वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते रहे, और जैसे ही हमारे सारे क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ रिएक्ट कर गए, सिल्वर क्लोराइड बन गया। और जब सारे क्लोराइड आयन्स ख़त्म हो गए और जैसे ही 1 ड्रॉप ऐड हुआ, लास्ट ड्रॉप जो है जो कि हमारे इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करके उसने सिल्वर क्रोमेट बना लिया। ठीक है, ये सिल्वर क्रोमेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, और यहीं पे जो है हम रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि सिल्वर क्रोमेट जैसे ही बना है तो रेड कलर अपीयर हो गया। ठीक है, अब जो है हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास इनिशियल रीडिंग जो है वो 0 आई है, फाइनल रीडिंग क्या आई है हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारी जो जिस एंड पॉइंट जिस पॉइंट पे रेड कलर अपीयर हुआ था वो 11.6 थी। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 11.6 ही आएगा हमारे पास। अब हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करना है कि जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क में जो हमने 10 ml सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया था उसके अंदर कितने ग्राम क्लोराइड सोल्यूशन था। तो उसके लिए जो है हम टाइटर फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। टाइटर फैक्टर बेसिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ सैंपल कंज्यूम्ड बाय 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल और मोलर ऑफ टाइट्रेंट इज कॉल्ड टाइटर फैक्टर। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सैंपल कंज्यूम हुआ है बाय 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल टाइट्रेंट। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से 1000 ml ऑफ 1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट किसके बराबर हुआ, 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जो है हमें ये देखना है कि 1 ml ऑफ 1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कितने ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन करता है। तो इसके लिए 1000 यहाँ की डिवाइड हुआ। अब हमें बेसिकली जो हमने सोल्यूशन बनाया वो हमने बनाया 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट। तो फिर हम 0.01 नॉर्मल के हिसाब से 1 ml में कैलकुलेट करेंगे कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो जब हमने 0.01 को मल्टीप्लाई किया इतने ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड से, तो हमारे पास जो आ रहा है वो है 0.000585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 0.01 नॉर्मल ऑफ 0.01 सिल्वर नाइट्रेट इन 1 ml। ठीक है, यानी 1 ml में जो है 0.000585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। अब हमें ये देखना है कि जो हमने 10 ml सोडियम क्लोराइड कॉनिकल फ्लास्क में लिया था उसके अंदर कितने ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है जो कि रिएक्ट हुआ है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने वीडियो रीडिंग कंसीडर किया वो हमने कंसीडर किया 11.6। ठीक, तो अभी हमने कहा था कि 1 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट कंटेन्स 0.000585 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे पीरियड रीडिंग से, और हमारी पीरियड रीडिंग आई थी 11.6। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0.000585, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.006786। .006786 ठीक है, यानी
0.006786 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। तो हमने कितना अमाउंट कैलकुलेट किया है, द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द गिवन सैंपल, क्योंकि हमने, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमने 10 ml सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया है तो उसमें जो है 0.006786 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने जो है कैलकुलेट कर लिया है कि कितना सोडियम क्लोराइड में जो है क्लोराइड आयन प्रेजेंट था, वो है 0.006786 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन।